Good afternoon. I mean, good morning, everyone, actually. Not good afternoon. Good morning. Good morning. How are you all doing today? I'm so happy to see you again because it's my night right now, right time. I think Poonam will be here soon. And today she's going to lead the whole session. I will be just doing and listening. Hi ma'am. Good morning. मेरे यहाँ पे एग्जैक्ट सनसेट का टाइम है. Actually, we missed that your ma'am's class. Huh? Yes. Ashwin ma'am's session. Yes, I'm gonna watch the recording. Yes, I mean, I wanted to join that, but फिर टाइम क्लैश हो रहा था तो मुझे भी समझ नहीं आया. और कोई टाइम में कर नहीं सकती हूँ. अभी रात के टाइम पे मैं कर सकती हूँ. But it's too much light setting and all there. It's night there, no now. Let me show you my virtual background. It's actually, it's gonna be almost like sunset time. Sunset time. Do you see that? Yeah. Yeah, it's almost sunset time. I love sunset time. It's amazing. और आज मैं अभी पूनम जी आते हैं तब तक आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि आज मैंने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया अपने खुद के इनर चाइल्ड के साथ. तो मैं गई, यहाँ पे हिल है तो जैसे अभी बारिश का भी टाइम चल रहा है तो मैं हिल पे गई, अकेली चली गई. बच्चे स्कूल में थे, हस्बैंड जॉब पे थे, मैं अकेली गई. फिर मैंने हिल पे गई. हिल पे मैं वहां पे थोड़ा सा वो करने गई, हाइकिंग मैंने थोड़ा सा किया. वहां पे शांति से बैठी, व्यू देखा. फिर मैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने के लिए गई फार्म में. तो आई विल शेयर द पिक्चर्स. Yeah, it was very nice. And dewdrop one, no, that was also very nice. Dewdrop and that butterfly cover. हाँ, मोथ. यस. तो आज क्या हुआ कि मैंने अपने इनर चाइल्ड की बात सुनी, उसके साथ टाइम बिताया. और मेरे जो बाकी मेरे काम सारे सुबह पड़े थे, पेंडिंग थे, फिर मैं सारे काम रख के चली गई. और इंटरेस्टिंगली आज सारा काम मेरा अपने आप, आई मीन मैंने ही किया, बट जो काम करने का मेरा मन नहीं हो रहा था इतने टाइम से, वो काम पूरा मैंने खत्म कर दिया. Okay, Poonam's here now. Let's start the live and we'll go from there. So what I was saying is कि जब इनर चाइल्ड की बात सुनते हो तो वो आपकी बहुत मदद करता है सभी चीजों में. I mean that picture was saying, tamasha picture. Yes. In that also it's inner child something, na? हाँ, अपनी अपनी अंतरात्मा की जब हम बात सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ऑफ कोर्स अंतरात्मा हमारा भी सब कुछ कर देती है. हमें जो चीजों को करना होता है हमारे लिए. Hi Poonam, how are you? Very good morning. Very good morning. Good morning. I'm fine. How's everybody? Yes, all good. Wonderful, wonderful. So finally, yes. So it's over to you now, Poonam. I will pin you. Fine. So finally, everybody is ready for the healings. Yes, we are actually. Okay, that's wonderful. Actually, that's the best thing we can do to ourselves, It's for the soul, because all our life we had been doing things for our bodies, thinking that our body is the real thing, that our body is we. But ultimately, the truth is this body is just a vessel and we are the light inside it. So today we are taking charge to do something for that light, for the source inside us, And your soul is going to thank you later for everyone.
यहाँ पे मैं एक बात जरा बोलना चाहूंगी कि Yes, please. बिफोर वी स्टार्ट मैं भूल ना जाऊं इसलिए तो यहाँ पे मैं अभी पूनम का अकाउंट नंबर वो शेयर करूंगी ग्रुप्स के अंदर, तो एनर्जी एक्सचेंज आप जो भी कर सकते हो प्लीज कीजिएगा. That's because she is sparing time for us, she is giving her energy, she is healing all of us, and it's our some or the other way our responsibility also to just exchange the energy that we are going to use her energy right now. So yeah, that's the only thing. I will share all the details whenever I can, and we can go from there. Okay, yes, over to you, Poonam. Thank you. Thank you, Alifia. Thank you for being so concerned. Thank you so much. That's a very nice gesture, actually. Otherwise, in today's world, everybody wants to take everything for free. But we forget that whatever we take for free is often taken back from us in some or the other way, right? Yes, So yes. we think it's for free, but it's nothing is free, right? Everything is energy, and everything is exchange of energy in some or the other way, right? So thank you for being so kind. So let's start with inner child. Okay, so our inner child, I hope everybody is comfortable with English, or I'll switch between both Hindi and English, right? हाँ, मिक्स करना तो सबको ज्यादा समझ आएगा. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो हिंदी ज्यादा समझते हैं. ओके, फाइन फाइन. हाँ. तो आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड की. तो इनर चाइल्ड जो हमारा है, ये एक बहुत ही, यू कैन से, बहुत ही बढ़िया टूल है. I'll call it tool to access the higher consciousness and higher dimensions, right? Our inner child is the gatekeeper of infinity. अब मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि हमारा जो inner child है वो infinity का gatekeeper है. Like infinite consciousness, there is infinite consciousness we can access, and there is infinite information that we can learn, you know. लेकिन हम लोग पूरी जिंदगी स्टक रहते हैं एक छोटे से सर्कल में, you know. तो सभी कहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग एक बॉक्स में ही स्टक रहते हैं फॉर आवर इंटायर लाइफ. अब ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स है वो सारी थिंकिंग और थॉट पैटर्न्स जो कि हमें सोसाइटी से दिए जाते हैं, यू नो. ध्यान से सुनिएगा पूरी बात. जब हम पैदा होते हैं तब हमारा कोई नाम नहीं होता, हमारा कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कास्ट, कोई बैकग्राउंड, कुछ नहीं होता. तब हम क्या होते हैं, वो सोर्स से आए हुए एक लाइट होते हैं जो इस बॉडी की फॉर्म में अभी आए होते हैं. वी आर सो फ्रेश एंड वी आर नथिंग एल्स बट जस्ट अनकंडीशनल लव एंड लाइट. ठीक है, हम लोग सिर्फ वही होते हैं. लेकिन फिर जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, हफ्ता बीतता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारी कंडीशनिंग चालू हो जाती है. हमें फिर एक नाम दिया जाता है, फिर एक रिलीजन दिया जाता है कि भाई अब तुम तो हिंदू धर्म में पैदा हो गए, तो तुम्हारा ये भगवान है, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रे टू दैट गॉड, एंड ये तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, तुम इस हिसाब से ही उठोगे बैठोगे और यही कुछ करोगे. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप मुस्लिम घर में पैदा हो गए, बिकॉज you were only light, you never had any other thing, तो अब भाई तुम्हारा नाम ये खान है, ये कुरैशी है, और अभी हिंदू को तुम्हें ऐसे पूजना था भगवान को, अल्लाह को तुम्हें ऐसे पूजना है. गॉट इट? सो ये सब हमें ट्रेनिंग दी जाती है. आवर सोल इज कंडीशन्ड. और वो जब बचपन में हम पैदा हुए होते हैं तो हम अभी डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं. लेकिन व्हेन दिस कंडीशनिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, तो हम उस सोर्स के साथ हमारा डिस्कनेक्शन हो जाता है, कंप्लीट, टोटल. क्योंकि अभी हमें हमारी जो आइडेंटिटी है वो ईगो टेक्स ओवर एज आवर आइडेंटिटी. आज भी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडीज कॉन्शियसनेस लेवल, बिकॉज एक टाइम पे मैं भी ऐसी ही थी, आपकी जैसी टोटल अनकॉन्शियस थी. आई वाज नॉट कॉन्शियस इनफ. तो हमारी आइडेंटिटी जो होती है, टोटल आइडेंटिटी, दैट इज दिस बॉडी. अब मुझे कोई पूनम कौर, तो मुझे लगता था वाह, मैं तो बड़े अच्छे धर्म, मेरा धर्म ये, मेरा वो.
है ना। फिर अब किसी से वो थोड़ा सा भी किसी चीज को लेके होता था तो मुझे लगता था कि इसने कैसे बोल दिया मुझे, बिकॉज दैट वाज माय ईगो आइडेंटिटी दैट वाज अटैच्ड टू दिस बॉडी. लेकिन अब आफ्टर आई हैड माय अवेकनिंग, आई हैड माय टोटल अवेकनिंग, so I unlocked the infinite consciousness, then I realized, oh my god, all my life I was living like a fool. Like we all are living like fools unless until we wake up. It's like कि हम एक ड्रीम स्टेट में है और हम लोग सोचते हैं कि ये ड्रीम जो है दिस इज द रियल लाइफ. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू वेक अप व्हाइल बीइंग अलाइव. तो अगर हम वी आर लकी इनफ कि जीते जी इस जन्म में अगर हम जाग जाते हैं उस नींद से और हम देख पाते हैं कि हम भी सपने में जी रहे थे और सभी सपने में जी रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स the best thing that can happen to us as humans, because we now I would say we are not humans, we are not this body. This body is the vessel which is given to us to travel our journey on this earth. जैसा हम स्पेस में जाते हैं तो we wear a space suit, right? So because we can't survive without that space suit, so I call this body the space suit to travel on this earth. तो हमारी जो लाइट है वो क्योंकि वो सूक्ष्म है इसलिए उसको ये स्थूल बॉडी दी जाती है ताकि वो इस अर्थ पे सर्वाइव कर सके. एंड अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे हम लोगों को ये बॉडी होती है एंड जिसमें ये फीलिंग्स एंड इमोशंस ये सब कुछ होता है. बाकी सभी प्लैनेट्स पे ये सब नहीं है. एंड यस देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स आल्सो. तो अभी बात करते हैं कि व्हाई आई कॉल इनर चाइल्ड द गेटकीपर. क्योंकि जब हम छोटे थे, बिल्कुल पैदा हुए थे, तब हम डायरेक्टली कनेक्टेड थे. हमारे हाथ में एक चाबी थी उस सोर्स के साथ कनेक्ट होने की. लेकिन बड़े होते होते हम कंडीशनिंग में आने लगे, प्रोग्रामिंग में आने लगे. तो क्या हुआ कि वो चाबी वो उस इनिशियल स्टेज में ही रह गई, बट वी फॉरगॉट कि एक चाबी भी है और हम इसे अनलॉक कर सकते हैं और हम उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं. राइट? आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ रही है. अगर समझ आ रही है तो गिव मी थम्स अप. ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो वो चाबी आज भी उस बच्चे के पास है जो उसे खोल सकता है और हमें वहां पे जोड़ सकता है. लेकिन अब क्या है कि हमने तो उस बच्चे को बहुत साल पहले ही अबेंडन कर दिया. अब कैसे किया? अगर तो हम घर में सबसे बड़े बच्चे थे, जैसे मैं हूं, तो हम अलग से टॉर्चर में आते हैं. बड़े बच्चे कोई छोटा भी मिस्टेक करे, कुछ भी हो, तो तुम बड़े हो, तुम्हें नहीं पता. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब सब कुछ बड़े बच्चे पे आता है तो चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग अबेंडन्ड, क्योंकि अब उसको इमोशनल सपोर्ट बंद हो जाती है. ठीक है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता था, तुम बड़े थे, तुम यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो वो कहीं ना कहीं एक अबेंडनमेंट आ जाती है. और दूसरे सिनेरियो में मान लीजिए कि आप मिडिल हैं या छोटे बच्चे हैं या कोई भी है, लेकिन आप बहुत ही सियाने हैं. तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी छोटे से सब बोलते हैं ये बच्चा तो बहुत सियाना है और ये खुद ही हैंडल कर लेगा सब कुछ, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं. उस केस में भी बच्चा इमोशनली अबेंडन हो जाता है. अब ये जो वुंड्स हमें चाइल्डहुड में मिलते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलते हैं. अब होते क्या है कि हमने ये सीखा कि अब हम बड़े हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, अब हम सियाने हैं तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू एक्ट इन सर्टेन वे टू गेट लव from our parents or our siblings or people around. तो हमने क्या सीखा? कंडीशनल लव. अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो हम ओरिजिनली थे अनकंडीशनल लव एंड लाइट, वो तो खत्म. नाउ एज वी राइज, तो वी हैव लर्न्ड दैट लव is only conditional and we can get love only when we fulfill certain conditions. ठीक है? वो चाहे पेरेंट्स का प्यार हो, चाहे हमारे सिबलिंग्स का हो, या फ्रेंड्स का हो, टीचर्स का हो, पार्टनर्स का हो, किसी का भी. और ये सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है व्हेन वी गेट इनटू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, अब हमें तो भाई मैं ये करूंगी
तो वो मुझे प्यार करेगा, या मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे प्यार करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो हम एक कंडीशनल लव के विशियस साइकिल में चले जाते हैं, जिसमें कई बार द अदर पर्सन यूजेस अस एंड अब्यूजेस अस, क्योंकि हम खुद हो रहे हैं और हमने बचपन से यही सिनेरियो सीखा है। तो इससे ज्यादा अगर कोई हमसे इफ somebody is like in a nice and good relationship with us, कोई अच्छा बन रहा है हमारे साथ, तो we are not able to believe, हमें लगता है कि इसके पीछे इसका कुछ मोटिव होगा, कुछ malicious intent होगा, तभी ये मेरे साथ इतना अच्छा बन रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। प्यार के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। तो वो चीज में अब हम फंस जाते हैं, हम अटक जाते हैं, और जो whatever the pure thing is coming to us, वो हम लीव कर देते हैं, क्योंकि हम रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। अब हम तो सिर्फ अनकंडीशनल लव, क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो अब हम वही जो वुंड्स हमें जो बचपन से मिले थे कि लाइक पीपल विल नॉट गिव अस अटेंशन, तो वी बिकम अटेंशन सीकर्स। तो अब वही अटेंशन पाने के लिए क्या है कि हम लोगों को अपने पार्टनर्स या किसी के साथ भी कंडीशंस फुलफिल करनी है। मैं उसके लिए ये कर दूं तो वो खुश हो जाएगा और मुझे प्यार करेगा। आई होप अभी आप सबको ये समझ आ गया कि जो इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं वो हमारे बड़े होते तक रिलेशनशिप्स में भी कैसे पैटर्न्स प्ले करते हैं, राइट। और इस हिसाब से हम लोग कभी भी एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाते। यही रीजन है कि हम लोग 20-20 साल की शादियों के बाद भी like we are not satisfied, because somewhere inside हम लोगों को ये फील होता है कि we were not given what we deserved, and कहीं ना कहीं पे we were cheated, और कहीं ना कहीं पे we feel that we were less of what we deserved, ठीक है। तो हमें यही लगता है कि हमें कहीं ना कहीं पे दबा के रखा गया है, लेकिन इसमें सिनेरियो तो हमारा बचपन वाला ही प्ले कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम हील्ड नहीं होते, और सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है टू अनहील्ड पीपल कैन नॉट बिल्ड अ हील्ड रिलेशनशिप, ठीक है। जब तक दो लोग टूटे हुए हैं वो एक अच्छा ब्रिज कैसे बनाएंगे, बिकॉज रिलेशनशिप इज अ टोटल ब्रिज फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, ठीक है। अगर ये ही कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो फिर देयर इज no point getting into a relationship, फिर वो तो it's like compromising and बस रिश्तों को खींचना हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अब वो चाबी खो गई, that is still with the inner child only, और उस चाबी को वापस पाके infinite conscious तक जाने के लिए हमें we have to get that key back, and that can be back only and only by healing the inner child। क्योंकि हमें पता नहीं था, इसलिए सबने तो अबंडन किया ही था उसे, अब हमने भी उस इनर चाइल्ड को अबंडन कर दिया, ठीक है। हमने कभी पूछा ही नहीं, उसको मुड़ के देखा ही नहीं कि उसको अभी कोई इश्यूज है, या फिर एक वो बच्चा हम ग्रो करते हैं लेकिन हम एक्चुअली में ग्रो नहीं करते, हम कंडीशनिंग से गुजरते हैं और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम का सामना मैंने किया, लेकिन वी फॉरगेट कि वी आर मास्किंग एवरीथिंग, और वो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा अभी भी बैठा है। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हील दैट लिटिल टाइनी इनर चाइल्ड ऑफ आवर्स, और उसको हील करेंगे ताकि वो अपनी खुशी से हमें वो चाबी दे जिसको इस्तेमाल करके हम इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाए। और ये बच्चा, ट्रस्ट मी, ये बच्चा हमें हमारे पार्टनर्स के साथ गुड रिलेशनशिप्स में कभी आने नहीं देता, क्योंकि जब भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो तो वो पहले बोलेगा, अरे ऐसे कैसे, मैं बैठा हूँ, आई नीड योर अटेंशन, प्लीज हील मी फर्स्ट, तब तुम्हारे रिलेशनशिप तुम्हारे पार्टनर के साथ हील होने दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं होने दूंगा। अंडरस्टैंड? तो दिस सिनेरियो कीप्स ऑन प्लेइंग, और वो बच्चा हमें बार बार नॉक करता है कि आई एम हियर, लुक एट मी, हील मी फर्स्ट। हमें समझ नहीं होता, इसलिए वो सिनेरियोस प्ले होते रहते हैं, और फिर हमारे पार्टनर के साथ वही झगड़ा, कलेश और ये सब चलता रहता है। इट्स एक्चुअली क्रिएटेड बाय द इनर चाइल्ड, क्योंकि उसको पता है कि तुम मुझे हील करोगे तो तुम्हारे आसपास में सब कुछ ऑटोमेटिक हील हो जाएगा,
लेकिन तुम हील ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो. सो दैट्स द ब्रॉड आउटलाइन, एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से सबको डिटेल में समझाया कि इनर चाइल्ड क्या है और इनर चाइल्ड वुंड्स हमें कैसे मिलते हैं. बचपन से ही शुरू हो जाते हैं. व्हाई इज द इनर चाइल्ड द गेट कीपर टू इन्फिनिटी, एंड इसको कैसे हील करना है वो हम अभी करेंगे. ठीक है. देयर आर मल्टीपल वेज टू हील द इनर चाइल्ड, और ट्रस्ट मी इट्स नॉट पॉसिबल कि हम एक ही दिन में इसको हील कर ले. क्योंकि अगर सोचिए आज हम लोग 50 साल के हैं, 40 के हैं, 30 के हैं, 60 के हैं, तो सोचिए कितने सालों से हमने इसको कितने जख्म दिए हैं. और वो सारे जख्म अगर हम कहें कि हम एक ही दिन में ठीक कर देंगे मरहम लगा के, नो, हीलिंग टेक्स टाइम. हालांकि मैं अपनी पास्ट लाइफ का पूरा बैगेज खत्म कर चुकी हूँ. टिल नाउ इट्स ऑल गॉन, नो कार्मिक अकाउंट्स, नथिंग. लेकिन फिर भी एट टाइम्स on regular basis I keep doing some or the other healings, because healing is an ongoing process. क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो रोज किसी ना किसी से हमारी मुलाकात होती है. किसी ना किसी से हो सकता है कि मुझसे कुछ गलत कहा गया. आई हैव टू क्लियर दैट कर्मा एवरी डे, बिकॉज मेरा पास्ट बैगेज खत्म, लेकिन प्रेजेंट में मैं क्या बैगेज इकट्ठा कर रही हूँ, दैट मैटर्स. और अगर मुझसे कोई हर्ट होता है या फिर मुझसे किसी को कुछ कहा जाता है, देन instantly I have to release that, I have to seek forgiveness, and I have to be in a state कि अब और karmas इकट्ठे नहीं करने. क्योंकि इतना सा टाइनी सा karma भी आपको मोक्ष से परे ले जाएगा और आपको नेक्स्ट बर्थ के लिए लेके आएगा. यहाँ पे नेक्स्ट बर्थ मीन्स जो आप अभी आपको याद है वो आप फिर से सब भूल जाएंगे, और नेक्स्ट बर्थ मीन्स फिर से उसी सर्कल में फंस जाना. बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि जो मुझे इस बर्थ में अभी मिला है वो नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा या नहीं. विल आई बी एबल टू बिकम कॉन्शियस इनफ while being alive? क्योंकि मरने के वक्त तो सभी को एक बार सब कुछ फ्लैश होता है, तो वी रियलाइज कि हाँ ये करने आए थे लेकिन हमने ये किया, इसी वजह से वी suffered a lot. So this is a very important lesson, to keep a check on your karmas on daily basis. That will make us more beings of love and light that we already are, but we don't realize that. ठीक है. तो चलिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए. एंड उससे पहले आई वुड लाइक everyone of you to drink some water, because water is good conductor of energy. तो जो भी एनर्जी हम कनेक्ट करेंगे या फिर रिसीव करेंगे वो अच्छे से बॉडी में मूव होता है व्हेन वी ड्रिंक वाटर. सो ये टेक्निक आपको अभी तक, आई डोंट नो इफ somebody has told you or not, but it's very important to drink some water before meditation and after meditation, ताकि वो एनर्जी अच्छे से हमारे अंदर मर्ज हो जाए. राइट. तो अभी सब लोग प्लीज हैव योर ग्लास ऑफ वाटर and sit down in a relaxed meditation position. So I'll also have water. Are we all ready?
Please show me thumbs up if everybody is ready. Okay, fine, wonderful. तो ठीक है, अभी I would like everybody to sit in a meditation position, like nice and straight. If you can sit like जैसे मैं अभी नीचे है मेरा आस पूनम, आप अपने आप को म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो 1 सेकंड, क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया है और मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जस्ट अ सेकंड, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड में से आवाज आ रही थी। जस्ट अ सेकंड। Just a second, I will do that. मैं अपना माउस लेके यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, इसलिए थोड़ा एक, हाँ अभी हो जाएगा। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, Okay, fine. Am I audible now? Okay, wonderful. तो अभी हम start करेंगे meditation, and as usual we would start with deep breathing, right? So आप ऐसे चौकड़ी लगा के क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं तो वंडरफुल, अगर नहीं तो यू गाइस कैन सिट इन चेयर विद योर बैक स्ट्रेट, क्योंकि एनर्जी फ्लोज थ्रू योर स्पाइन, तो हमारी स्पाइन को ऐसे स्ट्रेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नो स्लाउचिंग, नो ऐसे, लाइक बी टोटली स्ट्रेट, नाइस एंड स्ट्रेट, ओके? तो I would like you to just sit in meditation position and close your eyes, and then let's start with deep breathing. Okay, yeah, if anybody has any problems in sitting down, so they can lie down also, but it would be nice if we sit up nice and straight, and lie down without a pillow so that your spine is like straight. Okay, ओके अभी आई थिंक एवरीबडी इज रेडी, तो आप सभी क्लोज योर आईज and let's start with deep breathing. ठीक है, let's breathe through the nose and breathe out through the mouth, and keep following my instructions. Breathe in through the nose and breathe out through the mouth. Just keep on breathing. Keep breathing for a few minutes. Breathing is a wonderful exercise we can do for ourselves, our well-being. Breathing helps us remove unwanted thoughts and make our brain calm and composed and thoughtless. So breathe in through the nose and breathe out through the mouth. Now, as you breathe in, I want you to breathe in the positivity, the positive light. And as you breathe out, I want you to breathe out all the negativity, all the toxicity, all the negative thought patterns and behaviors. Breathe in positivity, breathe out
all the negativity. Breathe in, you become positive. Breathe out, you release all that no longer serves you. You release all the negativity. You have become positive and fresh. Your mind has become absolutely positive and fresh. Breathe out, all the thoughts are gone. Breathe in, positive energy fills you up. Keep breathing. Wonderful. Breathe in through the nose. Breathe out through the mouth. And now I want you to start breathing normally. And find the natural rhythm of your breath. Now, I want you to take your consciousness to a jungle. You are walking through a jungle. It's so beautiful, so green. You are just admiring its beauty as you walk past these beautiful trees. Now, as you go ahead, you notice a very big tree. It's giant. It's like you have never seen such a big, tall tree. Its trunk is huge. It's like the tree touching the sky. It's the ancient tree. Now you touch it and go around this tree slowly and nicely by feeling this tree. And now, as you are moving ahead, you notice that there is a door inside this tree. Now you open this door and you see there are stairs, but there is darkness inside. But then you see that there is some light towards the end of the stairs. So now you decide to go inside that tree
So you are stepping on those stairs one by one. Just keep counting how many stairs you're going down. Placing your feet nicely, strongly, and slowly, one after the other. You are going down, and then you see there is another door. You open that door and you are surprised to see this beautiful bright light, and then there is a garden. It's a beautiful lush green garden full of colorful flowers, greenery, full of birds that you have never seen before. There are butterflies, so colorful, so beautiful. This place is like heaven on earth. It's like you have never seen such a beautiful garden in your life before. अब आप इस गार्डन में पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, ऐसे ऐसे पंछी हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, और रंग बिरंगी तितलियां यहाँ से वहां उड़ रही हैं, और ये आपको ऐसा एहसास दे रहा है जैसे कि आप किसी जन्नत में पहुंच गए। इतनी खूबसूरत जगह आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं चाहती हूँ आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, इधर उधर घूमकर देखें, इस जगह की हर एक बारीकी को देखें और एडमायर करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। अब आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, आपने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक छोटा बच्चा अकेला बैठा है। अब आप यहाँ हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं उस बच्चे के पास जाके बात करूंगा या बात करूंगी, क्योंकि अब आप यहाँ पे हैं और वो बच्चा अकेला है, तो आप उससे बात करने जाते हैं। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उस बच्चे को पीछे से हाथ लगाते हैं, वो आपकी तरफ टर्न करता है, तो आप सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये तो मैं ही हूं। अब आप नोटिस करें कि उस बच्चे की क्या उम्र है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, उसने बाल कैसे बनाए हैं, क्या वो खुले हैं, हेयर कट है, 2 करेले किए हैं या चोटियां की हुई हैं। बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसा लग रहा है। अब मैं चाहती हूँ
आप खुद को उस बच्चे से इंट्रोड्यूस करें, उसे बताएं कि मैं भविष्य से आई हूं और मैं तुम्हारी ही फ्यूचर सेल्फ हूं। अब मैं चाहती हूं कि आप उस बच्चे को एक जोर से हग करें, क्योंकि वो पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था, आप ही के इंतजार में। अब मैं चाहती हूँ कि आप उस बच्चे को जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। मैं आपको कुछ समय देती हूँ जिसमें मैं चुप रहूंगी। आप उस बच्चे से बातें कीजिए, जो भी उसे कहना चाहते हैं वो आप उसे कह दीजिए। और उससे बात करते हुए आपके मन में जैसे भी भाव आ रहे हैं उन्हें रोकिएगा मत। अगर रोना आ रहा है तो आने दीजिए, खुल के आने दीजिए। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन या एजिटेशन फील हो रहा है, होने दीजिए, क्योंकि ये भाव सरफेस पे हील होने के लिए आते हैं। अब मैं शांत रहूंगी और आप उससे बातें कीजिए।
Beautiful. अब जाने का समय हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उस बच्चे से पूछिए कि ऐसा क्या है जो वो चाहता है कि आप करें। उससे पूछिए कि ऐसा क्या है जो तुम चाहते हो कि मैं करूं, जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। हो सकता है कि जवाब आपको अभी मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि वो आपको अभी जवाब नहीं देगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ साइंस के जरिए या सिंक्रोनिसिटीज के जरिए आपका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक ही हैं और आप कनेक्टेड हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि आप उस बच्चे को धन्यवाद करें, से थैंक्स कि उसने आपको समय दिया, आपसे बातें की। और उसे बोलिए कि अभी जाने का समय हो गया है, लेकिन मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसे बोलिए कि अब से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और तुमने मुझसे आज बातें की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जाने का समय आ गया है, तो अब आप उस बच्चे को गले से लगाइए, गोदी में उठाना है गोदी में उठाइए, उसे खूब प्यार कीजिए। अब उसे छोड़ दीजिए, वो जहां बैठा था वहीं पे छोड़ दीजिए। उसे बाय बोलिए, पीछे मुड़िए और वापस उस गार्डन से उस दरवाजे की तरफ चलिए जहां से आप भीतर आए थे। आप स्टेप बाय स्टेप उस दरवाजे के पास आ रहे हैं। चिड़ियां चहचहा रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, रंग बिरंगे फूल बहुत खुश हैं, वातावरण बहुत ही आनंदमय है।
अब चलते चलते आप उस दरवाजे के पास पहुंच गए हैं। अब वहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं, तो आप बड़े ही ध्यान से उन सीढ़ियों पे चलते हैं। जितनी सीढ़ियां आप उतरे थे उतनी ही सीढ़ियां आप ऊपर चढ़िए। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से कदम रखते हुए अब आप ऊपर उस दरवाजे तक पहुंच गए हैं जहां से आप नीचे आए थे। अब मैं चाहती हूँ इस दरवाजे से आप बाहर आए और इस जायंट एंशिएंट ट्री को धन्यवाद कहें कि इसने आपको मार्गदर्शन दिया, जहां से जाकर आप अपने इनर चाइल्ड से मिले। अब मैं चाहती हूँ आप अपने रास्ते वापस आए, उसी खूबसूरत जंगल से चलते हुए। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को वापस प्रेजेंट स्टेट में लेकर आए। आप कहाँ बैठे हुए हैं ये अपने माइंड में देखिए। आपके आसपास क्या है, आपके कमरे की दीवारों का रंग कैसा है। अब आपकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से अपने शरीर में लेकर आइए। अपने पैर हिलाइए, अपने हाथ हिलाइए, अपने शोल्डर्स को हिलाइए, अपनी गर्दन को घुमाइए। अब आप पूरी तरह से अपने शरीर में आ चुके हैं। आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी दोनों पाम्स को रब करें। अब इन्हें अपनी आईज पर रखें और धीरे से हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए एंड स्माइल टू द यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग यू इन दिस वंडरफुल हीलिंग। आज आपने खुद के लिए एक बहुत ही बड़ा काम किया है। खुद को भी थैंक यू कीजिए। और अब मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना पानी पीजिए और फिर मुझसे बात कीजिए। आई होप आप सबको अच्छा लगा। और अब आप आपके एक्सपीरियंसेस में हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पूनम जी। मैंने अभी सबको वो जो लॉक था वो खोल दिया है, तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं यहाँ पे। ओके फाइन। तो अभी आप मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। तो इट इज मैं अगर अपना नाइस टू नो।
हाँ, अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो इट वाज रियली अमेजिंग। रोना बहुत आया, रुक ही नहीं रहा था रोना, बहुत रोना आया, बट इट वाज अमेजिंग, वंडरफुल फीलिंग अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करना। उसको मैंने वहां पे मैंने झूले पे बिठाया, उसको वहां पे खिलाया, उसको वहां पे कुछ कुछ उसको जो खाना था वो मैंने खाना खिलाया। और इस तरह से इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग मेडिटेशन। थैंक यू सो मच पूनम। वो ट्री को मैं महसूस कर पा रही थी, अपने इनर चाइल्ड के वो जो एकदम जो कोने कोने से जो इनोसेंट हैंड्स को मैं महसूस कर पा रही थी। आई एम स्टिल लाइक, आपकी फीलिंग्स मुझे पहुंच रही थी, वो अभी भी आ रही है मेरे तक। वंडरफुल, बी ब्लेस्ड। और बताइए। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। सब अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? मैं बताऊं मैम, मैं बोलूं? यस प्लीज। मैम, मैंने बहुत बड़ा एक ट्री देखा, बहुत बड़ा, जिसमें आपने जैसे विजुलाइज करने के लिए कहा था। सच्ची में मैं एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही ऋषिकेश होके आई हूँ, तो वहां पर मैंने सच में एक बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज ट्री देखा था। और बहुत बड़ा तना था उसका, बहुत मोटा। तो इसलिए मैं बहुत इजीली उसको विजुलाइज कर पाई। फिर मैं जब अंदर गई तो मैंने सच्ची में इतना सुंदर गार्डन देखा, जिसमें ना जैसे शेप बना देते हैं ना ट्रीज के, मोर, इस तरह का गार्डन था वो। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स थे, उसके थोड़ी दूर पे एक झरना बह रहा था। वहां पे बैठी थी मैं वहां, और मैंने वहां पे देखा अपने आप को। मैंने बचपन में बिल्कुल चोटियां कर रखी है, जैसे कि मैं करती थी, और बाल बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं थे, छोटी छोटी पूछियां निकल आती है ना चोटियों में, यस। बचपन में वैसी मैं बैठी हुई थी। और मैंने फ्रॉक पहना हुआ था लाइट क्रीम कलर का। और जब मैं वहां पे गई तो मैंने उससे बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर है तू। और फिर उसने मेरे को देखा, बोला, वाह आप भी तो कितने सुंदर हो। फिर मैंने उसको कस के गले लगाया। फिर मैंने कहा चलो आजा बातें करते हैं, कितना सुंदर माहौल है ब्यूटीफुल। यहाँ पर, कितना सुंदर झरना बह रहा है। फिर ना मैंने उसको अपनी लैप में ले लिया। लैप में लेके वो उसका सर, मतलब फेस झरने की साइड था, और मैं धीरे धीरे उसके बाल से हिलाती गई, और हम दोनों बातें करते गए। मैंने कहा तू कैसी है? उसने भी बोला आप कैसे हो? उसने बोला मैं ना थोड़ी सी सैड हूँ, क्योंकि आपने इतना टाइम मुझसे बातें नहीं की। फिर मैं बोला आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे बात भी करते हैं ना। अब मैं पक्का तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर ऐसे करके हमने बातें करी। फिर मैंने उससे बताया कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है। बोला फिर क्या हो गया, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप जाओ नीति करो, वो रबड़ वाली नीति है ना, नोज से गले में निकालते हैं, ऐसे उसने मुझे सजेस्ट किया। मैंने उससे बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया, इतना गले लगाया कस के। मतलब इट वाज वंडरफुल। मुझे तो बहुत, अभी भी मुझे वो फीलिंग है कि मैंने वो छोटी बच्ची विजुअलाइजेशन में है। मतलब मेरे तो मन नहीं कर रहा था उसको छोड़ के आने का, सच्ची बता रही हूँ। मैंने वंडरफुल। बहुत बातें की उससे। वंडरफुल। पूनम और मैम, उसने आपको जो टेक्निक बोली है गला ठीक करने के लिए, डू दैट, दैट विल वर्क फॉर यू इंस्टेंटली। वो जरूर राइट। कीजिएगा। पूनम मैम, वंडरफुल, बी ब्लेस्ड। पूनम थैंक यू मैम, सो मच। पूनम मैम, आई डोंट नो, मेरा तो कनेक्शन आपके साथ मतलब जूम आउट हो गया था, अभी वापस आई हूँ मैं। सो मैं तो वो बच्चे के साथ में ही थी, ओके। and I have appreciated the child like anything, that you are strong, you are beautiful, you are good at dancing, you are loving, you are kind, and मैं तो एक ऐसा ये हुआ bump, and you know, in my head I went and it's been a long time. I said I can't hear your voice at all, and देख रही हूँ तो I'm out of the Zoom. Then what to do? Then I again rejoined now, and I could hear Shashi ma'am speaking. Okay. Okay, So wonderful. No problems. You had that experience, right? yes, yes, Yes. You healed but your inner child. That's wonderful. exit was not there, no, from there. So then that's not a problem.
Sorry, I couldn't hear you. Exit from that area was not there. Okay, Then- exit was not there. Okay, I would like you to again sit and connect to the exact place where you were when the connection in got that disconnected. garden only, in that garden with the child. उसके बाद I would like you to say that it's time to go. आप उसको बाय बोलिए and ask कि ऐसा क्या है जो तुम चाहते हो कि मैं करूं, ठीक है? You can get answer instantly or you can get answer आगे आने वाले दिनों में in a form of some signs and synchronicities या फिर कोई टीवी शो, कोई सॉन्ग, कुछ भी. It can be in any form. आपको पता चल जाएगा because you are connected, ठीक है? और बस उसके बाद में I would like you to turn your back and आप धीरे धीरे उस डोर तक आइए जहां से आप एंटर किए थे. फिर जितने स्टेप्स आप नीचे गए थे उतने स्टेप्स आप ऊपर आइए. फिर वो ट्री ट्रंक का जो डोर था उसमें से बाहर आइए and then thank that tree for showing you the path to connect with your inner child. उसके बाद में start walking ahead towards the jungle and then bring back your consciousness towards your own body. ठीक है? पहले अपने रूम तक लेके आइए. इमेजिन माइंड्स आई से कि आपकी कौन से कलर की वॉल्स हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आसपास कैसा है. Then bring your conscious back to your body completely. फिर move your toes, your hands, then your shoulders, then your neck, you know. Then you'll be completely back inside your present state. ठीक है? तो आप ऐसा करेंगे तो you'll be back. Because obviously it's very, if it is important to go there, it's far more important to come back. Come back, yes. Yes, That is it's what- very important. That's why what coming was the back is a question? very slow process. I don't do like कि आ गए आप वापस, नहीं. It's very slow and important process to come back. So you can do this. You can continue from that place, right? Okay. मैम क्या क्वेश्चन बोला था? What should I do? क्या क्वेश्चन बोला था? हाँ, कि उससे पूछिए कि ऐसा क्या है जो तुम चाहते हो कि मैं करूं. वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सजेशन देगा बच्चा. तो that's what she actually wants you to do. Oh. Yeah. So can You I can- do this either along you with can the get recording? answer instantly or maybe in coming days you will get your answer in some or the other form. Well, you have to be very vigilant about that, right? Okay. Yes. Thank you. Thank you. Be blessed. Amazing, huh? It was wonderful. And my legs became so heavy that then I felt why I'm not able to hear Poonam ma'am's voice. And then I slowly opened my eyes. I saw, okay, I'm out of the Zoom. I'm on the message screen. Okay. So no issues. Once you do this practice, you'll be feeling perfectly fine. Basically, everything is fine, but it's still, it's always good to be on the safer side, right? Okay. Yes. Thank you. Thank you. पूनम, मुझे यहाँ पे किसी का मैसेज आया है, डायरेक्ट मैसेज, कि उनका इनर चाइल्ड उनसे बात नहीं कर रहा था. वो पिक कर रहा था फ्लावर, उनसे बात नहीं करना चाहता था. ओके. तो आपका इनर चाइल्ड आपसे बहुत ज्यादा हर्ट है. डोंट वरी, ठीक है? आपको उसको बार बार विजिट करना पड़ेगा एंड उसको आपको ट्राई कि आप जब बचपन में थे आपको क्या अच्छा लगता था, आपको वो पता होगा ना. ट्राई टू डू दोज थिंग्स, क्योंकि अभी उस बच्चे को कंडीशनल लव पता है. तो हो सकता है कि वो इतना ज्यादा हर्ट है कि वो कंडीशंस पे ही अभी काम कर रहा है. गॉट इट? तो आप उसको जो पसंद था, जस्ट गो टेक दोज थिंग्स. अगर उसको फ्लावर्स या जैसी ड्रेस या कुछ स्वीट्स, कुछ भी खाना जो भी पसंद था, जस्ट टेक दोज थिंग्स एंड ट्राई टू डू दोज थिंग्स विद दैट चाइल्ड. तो वो आपसे बात करने लग जाएगा. अगर फिर भी नहीं करता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन टेक एक्सटेंसिव हीलिंग फ्रॉम मी where I will connect with you and your inner child both, and then this issue can be solved. ठीक है? It happens at times, so कोई बात नहीं है. आप एक बार इसको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं. And if it doesn't work, then
you can contact me, and then we can together do this energetic blockages clearing, because कई बार हमसे खुद blockage clear नहीं होते, तो you can always take my help in that, right? Poonam, one more question is that we can do it daily, this meditation for some time, because today I could visualize whatever you were telling me, but when it came talk to your inner child, I think that time I don't know where I was. I couldn't talk to my inner child. She was sitting beside me, but I was not able to talk. And after that, when you said move out, now say thank you, then I got connected again. So, Okay. So I don't know why I was not able to talk, or I was into something else. I don't know. But after that, again, I followed your instructions. I mean, I could follow. And Okay. the inner child told me what to do. That I could visualize, like dance, play, be happy, play all the games, because I loved playing games when I was small. Okay. Yeah. But Okay, I was wonderful. only No problem. that point I missed when I was supposed to talk to my inner child. Okay, That it time I think happens. I was It into meditation. Yeah. Yeah, it happens. So that's perfectly fine. Like for everybody, experience would be different, because our inner child is heard in different ways, you know. So the experience we would be having would be totally different. Like when I first started doing it, so my experience was like my inner child was totally hurt, like bruised badly. So uske baad mein, I had to do lots of extensive healings for my inner child. And then one fine day when I asked her, then she just handed me one slip paper and she ran away. She didn't talk to me anything that day. She was just playing and I was observing, and she gave me that slip and it was written, I love you. And I understood that now she is completely healed, you know. So everybody has a different sort of experiences, and everybody needs different healings, you know, as per their own wounds and their own So systems, you know. what does this means? If I was not able to talk, that means I have to connect again and again with it. Yes, you have to connect again, and that should work. But still, if that doesn't work, I'm always there, because I offer extensive healings in various fields. Like I help people healing their inner child issues, their relationship issues, their sexual traumas, and their past life karmas and traumas, and their ancestral traumas. So I offer extensive healings to people, and a lot many people have already benefited, because unless until we drop these baggages, we won't be able to rise high, you know. I would like to give one example. Like it's like hot air balloon, you are sitting into that and it's ready to fly, but जो इसके threads है वो नीचे उस पे पत्थर बांधे हुए बड़े बड़े, तो अब ये उड़ नहीं पाएगा. आप लोग तो हॉट एयर बलून में बैठ चुके हैं, लेकिन अब उसमें फायर भी है, गैस भी है, वो रेडी है, बट इट्स नॉट एबल टू फ्लाई, क्योंकि वो पत्थर तो हमने हटाए ही नहीं ना. तो इट्स लाइक दैट, वो पत्थर हमें नीचे खींचे हुए हैं. सो वी जस्ट हैव टू ड्रॉप दैट डेड वेट नाउ, और तभी we can fly to infinite sky and have that infinite consciousness. Yes, please. मेरे पास एक और डायरेक्ट मैसेज आया है. किसी ने पूछा है कि बहुत ही सारे पास्ट थॉट्स आ रहे थे, तो मैं इनर चाइल्ड से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी. तो आप उनको बताइए. Okay, fine. So that's again the same issue, क्योंकि आपका inner child काफी hurt है. I can understand कि आपका जो childhood रहा होगा would have been quite difficult. So that's perfectly fine. अगर आप नहीं connect कर पाए, you can use this session again on your own. आप connect कीजिए, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, then you can connect with me directly. I would love to help anybody who needs extensive healings. I would love to help anybody in that, you know. So please feel free to approach me for anything, any of the issues which you are not able to heal, right? Because I understand how difficult it can be to
carry dead weight on your shoulders, you know, that is not serving us, that is creating problems inside our life totally. So it's like, it's of no use carrying that weight. So whenever you need any assistance, you can please approach me directly. पूनम जी, सोनिया Yes, मैडम। please. हाँ जी, मुझे अपना बचपन नहीं, मुझे अपनी सिस्टर दिख रही थी। मतलब मैं जब अपने आप को देखने की कोशिश कर रही थी, तो आपको मतलब प्रेशराइज कर रही थी कि मैं अपने आप को देखूं, बट हर बार मुझे मेरी सिस्टर ही दिख रही है। मतलब जैसे मेरी सिस्टर थी ना बचपन में, मुझे बार बार वही दिख रही थी। और मतलब बातें तो खैर बिल्कुल कूल एंड काम था, मतलब हम लोग बस बैठे हैं, बट मुझे मेरी सिस्टर दिख रही थी। तो ये मतलब जब सब लोग शेयर कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों। ओके, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके अपनी सिस्टर के साथ बचपन में कुछ इश्यूज रहे होंगे। इट्स क्वाइट पॉसिबल, कोई भी किसी भी टाइप के इश्यूज हो सकते हैं, या तो इट कुड बी लाइक टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो बाद में नहीं रही, या फिर इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ जेलिसी। कई बार सिबलिंग्स में बहुत होता है, तो इट कुड बी दैट। या फिर ये होता होगा कि मे बी उनको लगता होगा इसको सब मिलता है, मुझे नहीं मिलता, इसको सब प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। या फिर इट कुड बी द अदर वे राउंड, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे नहीं करते, इसको करते हैं। could be any scenarios in this case. नहीं, अगर मैं याद करूँ तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता। मतलब हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि जो आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली बात कर रहे हैं, उसको मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि बिफोर मैरिज जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आप उसकी मैरिज के बाद हमारा वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, मतलब तो ऐसा नहीं है कि, और लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि मेरे पास 2 बेटे हैं, ठीक है। और मैंने जब भी जैसे मुझे सपना आता था कि मेरे पास बेटी है, मतलब बच्चे बड़े हो गए थे तब तक आता था मेरी बेटी हुई है, और वो हमेशा मेरी सिस्टर ही होती थी। मतलब जब भी मैं ओके अपने आप बेटी देखती थी अपनी, तो वो मेरी सिस्टर ही होती थी, मतलब मेरे पास हमेशा। मतलब वो सपना मुझे जब तक मेरा यूट्रस रिमूव नहीं हुआ तब तक आया है। उसके बाद आना बंद हुआ कि शायद मेरे सबकॉन्शियस को पता चल गया, अब कुछ नहीं होएगा हो सकता। लेकिन मतलब वो हमेशा मेरी सिस्टर ही होती थी मेरी बेटी के रूप में। जब भी मैंने सपने में देखा अपनी बेटी को अपने साथ, मतलब ये फील किया कि हाँ, तो वो मेरी सिस्टर ही होती। तो मैं उसको और उन दोनों बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने इसीलिए आपको ओके, इट कुड बी आप दोनों का जैसे इनर चाइल्ड दोनों का ही वुंडेड है, ठीक है। एंड अब बड़े होके जैसे हम में क्या होता है कि हमारी ईगो, मतलब वी टर्न बैक टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन आवर इनर चाइल्ड इज ऑलवेज लाइक दिस। वो टर्न बैक में भी वो दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपस में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो ईगो सेल्फ है वो हमें सेपरेट कर देती है, एंड दैट्स वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर आवर हेल्थ एंड आवर रिलेशनशिप्स। तो दिस कुड बी कि उनकी जो इनर चाइल्ड है वो आपसे कनेक्ट कर रहा है और आपको खुद से कनेक्ट नहीं होने दे रहा। कुड बी कि आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए। ट्राई टू टॉक टू हर एंड ट्राई टू टॉक लाइक बचपन की बातें कीजिए। एंड इट कुड बी कि जैसे आपके रिलेशन उनके साथ हील होते हैं, you would be able to connect with your inner child, otherwise this will be a hindrance, ठीक है। और इसमें और डिटेल में तो फिर अगर आप चाहें तो फिर then I would have to do certain analysis। अगर आपका ये ऐसे इश्यू सॉल्व होता है like going and talking with your sister and healing your relationship with her, तो that would be wonderful। अगर तब भी नहीं होता है then you can get back to me, because then I do certain practices to analyze certain situations, ठीक है। तो आप ये कीजिए, heal your relationship with your sister first। आप हो'oponopono कीजिए and then try to talk to your sister, क्योंकि face to face बात करने से better कुछ भी नहीं है। हेलो मैम, ऐसे हम बात कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है हमारे बीच में, ऐसा नहीं, बट एक जो पहले जो एक बॉन्ड था वो वहां पे कुछ कमी है कह सकते हैं। हाँ, तो वही बॉन्ड आपको अभी स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ ऐसा कीजिए जो आप दोनों बचपन में एक साथ किया करते थे, या कोई ऐसी मूवी देखने जाइए जो आपको बचपन में बहुत पसंद थी, साथ में बैठ के देखिए।
पॉपकॉर्न खाइए साथ में बैठ के, एंड या फिर गो एंड प्ले सम गेम जो आप बचपन में साथ में खेलते थे, कुछ कीजिए दोनों साथ में जो करते थे बचपन में, डू दैट विल हील योर रिलेशनशिप। क्योंकि बच्चे बहुत सियाने होते हैं, हमें नहीं लगता है लेकिन बच्चे बहुत सियाने होते हैं, और सारी की सारी चाबी तो बच्चों के पास ही है। थैंक यू। यू बहुत अच्छा वेलकम, सेशन था, बी मतलब ब्लेस्ड। हेलो ओवरऑल एक मैम। अच्छा एक्सपीरियंस था, कनेक्ट नहीं हुई बट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, वंडरफुल। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, सुनीता आपने बोल मुझे रही हूँ। अपने नाम बताते रहिए, बिकॉज आई एम ऑन फोन, तो मुझे पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। मैं तो सुनीता इफ बोल यू रही कैन हूँ। टेल मी योर नेम दैट वुड बी नाइस। मैं सुनीता बोल रही हूँ। एक्सक्यूज मी ओके मैम, फाइन, मेरी आवाज आ यस, रही है आपको? हाँ आई कैन हियर यू। हाँ, मैं ये बोल रही थी, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, मुझे ट्री भी नहीं दिखा। ऐसा क्यों? फिर आपका एक्चुअली विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो बहुत ज्यादा chaotic है, आप प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, यू आर स्टक इन सर्टेन सिनेरियोस जो आपके माइंड में प्ले करते रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर आपके माइंड में प्ले करता है लेकिन प्रेजेंट नहीं आ रहा है, तो दैट्स अ सैड थिंग टू डू। लेकिन आप क्या करिए, ट्राई टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट, ज्यादा आप ब्रेथ वर्क कीजिए, जिससे आपके जो थॉट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और माइंड में क्लैरिटी आनी शुरू होगी, ठीक है? क्योंकि मुझे जब तक ब्रीथिंग, माइंड में क्लैरिटी नहीं है हम कहीं पे भी कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं ब्रीथिंग करूँ? हाँ, आप ब्रीदिंग कीजिए, आपको जब भी समय होता है दिन में, सुबह शाम 5 मिनट कर लिया, सुबह कर लिया 5 मिनट शाम, या फिर जब टीवी देख रहे हैं बैठे नाइस, अपना पोस्चर ठीक करिए एंड देन स्टार्ट ब्रीदिंग थ्रू द नोज एंड स्टार्ट ब्रीदिंग आउट थ्रू द माउथ। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके। नहीं, सब बोल रहे हैं ना मुझे ये हुआ वो हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी? मैंने कहा सब लोग बोल रहे हैं ना कुछ हुआ, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आपको भी होगा, नेक्स्ट टाइम होगा, डोंट वरी। सब देखिए, सबकी सोल जर्नी अलग है और सबकी यहाँ पे 3D जर्नी भी अलग है। अब जैसी मेरी लाइफ है वैसी शायद आप में से किसी की भी नहीं होगी, और जैसी आप लोगों की लाइफ है वैसी भी किसी की नहीं होगी, सबकी अलग अलग है। सो वी कांट कंपेयर, एंड कंपैरिजन इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू विद आवरसेल्व्स, ठीक है? और कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे। हाँ, एक तो चीज हाँ और हाँ, पूछना चाह रही थी, जैसे मेरी खुद की ओरिजिनल आवाज है ना, वो मतलब आती नहीं है, मतलब ये मेरा गला ना मतलब यूं ही रहता है, ये क्यों? आपके थ्रोट चक्र में इशू है, देन लाइक योर चक्रास आर ब्लॉक्ड। इट्स तो नॉट क्या ओनली करना चाहिए? थ्रोट बट योर कंप्लीट चक्रास आर ब्लॉक्ड। तो वो आपको चक्रा हीलिंग करनी चाहिए सारे चक्रास के लिए, अच्छा, है तो ना? ये किससे करवाना चाहिए? कौन कर, आप करते हैं? आई डू ऑल द हीलिंग्स आई डू। तो अगर आप करवाना चाहें एक्सटेंसिव हीलिंग्स तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है? आई डू, एंड चक्रा हीलिंग से आपके जैसे ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कनेक्ट। तो ये क्या ऑनलाइन करेंगे आप? हाँ, ऑनलाइन। पर्सनली? पर्सनल में फिर आप मतलब पीपल कांट कम टू पंजाब, और कोविड से तो हमने यही नहीं सीखा है कि मतलब वन टू वन करने के लिए वी डोंट नीड टू बी फेस टू फेस, वी कैन डू इट ऑनलाइन। तो कोविड से जब से ये बंद हो गया था ट्रैवलिंग का, तो तब से हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन के लिए पूछ रही हूँ, ऑनलाइन मुझे सिंगल में करवा देंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, पर्सन वन सेशन ऑनलाइन, लाइक पीपल हैड बीन टेकिंग, लाइक आपके ग्रुप्स में से भी many people have so far taken these extensive healings from me, and they have healed their issues wonderfully. So I feel blessed to be on this side that I can help people in improving their lives, you know. After all, we all deserve to be happy. Yes. Poonam ma'am, as one madam said, in the beginning, I could also see my son ka chota bachpan with his curly hair and, you know, eyelashes, strong eyelashes. And then slowly I could see myself. Okay.
Okay. And like happens. this only, as I'm seeing right now, what you can see my face, the same face I could see in my bachpan also, ma'am. Oh wow. It happens Same because hairstyle. I हम don't लोग know. अपने बच्चों से खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, you know. अच्छा. तो इट हैपेंस कि फर्स्ट टाइम में हमें कई बार हमारा, क्योंकि हमें खुद का बचपन हम अपने बच्चों में देखते हैं, और जो हम हाँ. खुद नहीं कर पाए होते अपने बचपन में, वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमारे बच्चे वो सब कर पाए, अंडरस्टैंड. हाँ, तो हाँ. इसलिए होता है कि हम अपना बचपन अपने बच्चों में ही देखते हैं, तो तभी तो हम जज कर पाते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसको ऐसा But- नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई वाज अ फुलिश पर्सन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो इसको हाँ, फुलिश हाँ. नहीं होना, प्लीज. गॉट इट. He तो is वो now हम अपना, 29, Bata. He's now यस 29. And yesterday also we had a very good association. 2-4 दिन से बहुत discussion and everything is going on. And my husband was also saying कि मुझे उसका बचपन बहुत याद आ रहा है and all that stuff. And like today when you said, so पहला मुझे उसका वही चेहरा याद आया कि मेरे husband उसको जब मुंडन हुआ and you know all that stuff. पहले starting then I said, I have to look at myself. And the same image right now, what image I can see in the Zoom, I could see my same images like this only, ma'am. Yes, that's wonderful, because all the life we try to find our childhood in our children, so it was because of that. तो होता है जब मेरे बच्चे भी कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो मुझे लगता है ओ माय गॉड मैं भी ऐसी थी, नहीं 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 इनको ऐसे नहीं होना. So that's how it plays. So it's perfectly fine. It's perfectly fine, you know, because we all miss our childhood, but we don't know how to connect with our inner child. तो हम वो अपने बच्चों के साथ करते हैं. So it's perfectly I'm still many a times a child like only, even now. Like my husband says, you are a principal, so behave like a principal. I say, no, let it be. That is different. And now I'm a different person. Yes, yes, So- wonderful. We should always keep our inner child alive. We, whatever she wants us to do, we must do. अगर बचपन में उसको कंचे खेलना अच्छा लगता था तो go out someday and play. अकेले खेलो. Yes. हाँ. क्योंकि आपके साथ वो तो है ना, she is inside you. She'll feel wonderful about it. क्योंकि kid is always there, लेकिन अब उस पे layers किस बात की हैं जो सोसाइटी ने हमें दिया है. Now these are the layers on that child. सोचिए वो कितना भार उठा के अकेला बच्चा बैठा है अभी तक, you know. So we need to clear that weight off of the shoulders of that child. और उसको जो अच्छा लगता है, we should do that, you know, So very ये often. recording क्या हम देखेंगे कि वापस जो से लोग बच्चों जैसा बिहेव करते हैं वो लोग ज्यादातर they remain young for longer than other people, you know. It's the inner child blessing that you stay young when you connect with your inner child, you know. So that is what the remark I get many a times, that Ari, you are so this thing. Yeah. My husband says, Badi kab hogi, badi kab hogi. My son says, I says, no, I'm happy the way I am right now. Yes, बड़े होना ही नहीं है हमें, नहीं because है. हम बड़े होने आए ही नहीं थे. So like 2 days before, I felt like eating pani puri, so I went and ate pani puri. Wonderful, wonderful. That's what And I we should packed do. bhel puri for my family also. But I Okay. ate pani puri over there and packed bhel puri and momos for my family. And That's wonderful. That's a wonderful thing you have done already, and I bless you. Be blessed. yes, ma'am. And for extensive healing also, I will have a word with you. So to get Sure, more anytime. Now knowledge you all about- have my number, and I think Yes, yes, you Alifia people have ma'am has. joined other group also, which I had created, because many Yes. of you sisters were asking me to make a group, because I was not having any group previously, because I think like it's like it becomes a weight, you know, when you have like it's too a big responsibility. I see Alifia is doing a wonderful job. Yes, yes. I But always I'm thought missing that it's too big a Alifia ma'am's responsibility. afternoon classes because of school. Yes. It happens अगर live class रहा तो वो attend करने का मजा ही कुछ और है. That's true. That's और true. recording हो में सकता क्या है- हो जाता है कई बार कि थोड़ा आलस आ गया तो recording नहीं join किया, नहीं Yes. देखा. Yes, You know, yes, yes. sometimes that happens.
तो फ्यूचर में हम लोग प्लान कर लेंगे, अगर कुछ हम अर्ली मॉर्निंग का रख सके ना फ्यूचर में, व्हेन ईच एंड एवरीबडी हैज टाइम, बिकॉज आई नो ईच एंड एवरीबडी इज वर्किंग। तो अभी तो शायद समर हॉलीडेज हो जाएंगे, तो वी कैन प्लान समथिंग। मैम हमारे समर हॉलीडेज तो खत्म हो गए ना, कोई है ही नहीं समर हॉलीडेज, बिकॉज बोर्ड एग्जाम था। तो अभी Okay, 24 को fine. बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, अभी 1 जून से हमारा CS का एग्जाम सेंटर है, तो वो चालू हो जाएगा। So Okay, there's no okay. holiday for me as such. Okay, then at least for on Sundays we can plan something, right? Any day, ma'am, any day. When everybody, whatever everybody suggests, I don't have any problem. Yes, I'll go because with the flow. yeah, that's nice. That's how it should be actually. It's wonderful, wonderful, and be Nice. blessed. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. Poonam ji, So good which is morning. the right time to talk to you, like if we want to talk? Anytime. Okay. What would I do if I'm busy? I would say, okay, Dr. Uma, I'm busy right now. Once I'll be free, I'll get back to you. That's it. So you Ma'am, can call contact me me Uma only. anytime. Call me Uma only. No, you're Dr. Uma, so I'll call you Dr. Uma because No, that is a doctor is my PhD doctorate, but I totally I- understand. I would love to be called as Uma only. No problem. Yeah. Chalo, bye. I need to make a move to the school, so Yeah. I'll dress up. Thank you so much. Thank you, Alifia ma'am. Like even she's joining from there, so Yeah. उनके टाइम के हिसाब से करना पड़ता है। चलिए, thank you so much. Thank you. Thank you. मैम हाँ पूनम Yes, जी, yes. We Yeah. have 10 minutes now क्योंकि I have to go to my children's school. आज उनकी PTM है, तो Okay. we have 10 minutes. तो 10 minutes में I would love to listen from everybody. ठीक है? हाँ जी, भी बताइए. हाँ पूनम जी, गुड मॉर्निंग। वो Good morning. मेरे को बोलना था, मेरा मतलब बचपन का जो दिखा वो उसको मैंने बांस के पेड़ के नीचे बैठाया, वहां तक तो दिखा पूरा अच्छे से। जो मेरे को बचपन की पहली अपनी मतलब अपना शरीर याद है, वहां उसको मैंने मतलब उसको वो चल के आई वहां तक, वहां रहा। उसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे मेरा अपना बचपन पूरा दिखते रहा। जैसे मेरे भाई बहन, मेरे से 4 भाई बहन छोटे हैं, मेरे को पूरा लाइफ याद है अपना सारा टीन एज तक का। तो उस समय मेरा स्वभाव बहुत शांत था, मैंने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो उसके बाद जैसे अब बड़े हुए, अब बेटा बहू आ गया, मतलब बेटी से शादी हो गई, तो अब जो भी मतलब जिनसे भी थोड़े बहुत संबंध खराब हुए, उनको लेके मतलब ऐसा लगा कि तुमने बचपन में कभी कुछ नहीं है, किसी से तुम्हारा कोई बैर नहीं है। तो ये जो मन में गांठें बंध गई है, ठीक है सब कुछ, लेकिन मेरे को वो तकलीफ दे रही है। मेरी बात होती है, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, किसी से बैर क्यों किया, मेरे लिए किसी ने गलत क्यों सोचा, तो मेरे को हर्ट करता है। तो उसने कहा कि उन संबंधों को तुम सुधार लो, ऐसा हाँ. मुझे लगा। वंडरफुल। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन आपके इनर चाइल्ड ने दी है ना, आप आंखें बंद करके उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आपको रामबाण दिया है उस बच्चे ने, ठीक है? क्योंकि वो स्ट्रेट फ्रॉम द डिवाइन आया है आपके सीधे लिए। बचपन से जंप करके एकदम अभी 55 के एज में आया सीधे। यस, तो वो 10 उसने साल बोला से है लेके सीधे सुधारो, बीच के। हाँ। तो आप दूसरी तरफ से मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो पहल करें, आप खुद पहल कीजिए और सुधारिए। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतना इजीली सब कुछ कैसे सही हो गया। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो चाइल्ड इनर चाइल्ड होता है ना, दैट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिवाइन, और उसके मुंह से आए हुए शब्द मतलब डिवाइन से सीधे शब्द हैं। तो आप इसको जरूर कीजिएगा, इसको बस भूल मत जाइएगा, ठीक है? जैसे मेरे को लगा कि मैं खेल रही हूँ, जो भी मैंने बचपन में किया सब चीज दिखाई दिया अच्छे से, जो भी सीन थी ना, उसके बाद सीधे ऐसे लगा कि ये सब है तो मेरी शांति को यही भंग कर रहा है। मेरे पास सब कुछ है बस, लेकिन मेरे को वो थोड़ा हर्ट करता है। मेरी उनसे बात होती है, सब चीज अच्छा है सब कुछ, लेकिन ऐसा लगता है जो मैं चाहती हूँ बहुत हंसता खिलता हुआ अचानक से फोन आए, वैसा कोई संबंध नहीं है। तो वो मेरे को मतलब परेशान करता है अंदर से। हाँ, आप शुरुआत कीजिए, इट विल इम्प्रूव। शुरुआत मैंने कर दी है, वैसे सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन हाँ कहीं हर्ट हो रहा है अंदर से, तो वही पूछ रहा था। अच्छा, आपका जो भी सेशन रहेगा मैं अटेंड करना चाहूंगी खास करके, तो मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। जरूर अली- जरूर।
तो Poonam इट्स ऑल Talk a lot of क्रेडिट things. गोज टू अलिफिया, क्योंकि वो टाइम टू टाइम मुझे बताते रहते हैं कि आप प्लीज ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, तो वो आप सबकी तरफ से इनिशिएटिव लेती हैं। फिर जैसे मेरे पास समय होता है तो फिर मैं उनके साथ टाई अप कर लेती हूँ कि ठीक है, जैसे आज मेरे पास अर्ली मॉर्निंग वक्त था तो मैंने उनको बोला ठीक है, क्योंकि अब अगर मेरे पास कुछ गिफ्ट है तो मैं उसको अगर पैकेट को बंद ही रखूंगी तो कोई फायदा नहीं है। गिफ्ट हम सबके पास है लेकिन हमें उसको खोलना नहीं आता। अब अगर मैंने खोल लिया है तो मुझे ये सबके साथ बांटना चाहिए, नहीं तो ये ऐसी सड़ के वापस जाएगा और मुझे वहां से डंडा पड़ेगा कि तुम्हें गिफ्ट दिया था, तुमने शेयर नहीं किया। समझते हैं? Thank you. तो वो हम सबके पास है, बस हमें ये सीखना है कि उसको खोलें कैसे। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा, तो अब मेरी ये कोशिश है कि मैं हम सबको सिखाऊं ताकि हम सब अपने पैकेट खोले। अब सोचिए अभी आपके पास एक पैकेट है गिफ्ट का खुला हुआ, जब हमारे पास ये 50 पैकेट हो जाएंगे खुले तो सोचिए कितना प्यार और रोशनी होगा हमारे पास, और हम कितना ज्यादा बांट सकते हैं सोसाइटी में, है ना? तो बस यही हमें करना है। Poonam ma'am. यस प्लीज। Ma'am, actually, I was seeing my inner child, like you told, I was climbing 15 steps like that. Then I reached the top. Then from there, the garden, beautiful garden, and so many gardens, like I have seen in my childhood. Maybe I have seen in Germany, China, and then even Himachal, all those, everything, Srinagar, everything I have seen. Then I saw, like you were saying, no, like find the inner child in you. But actually, then when I met, actually recently I wrote a book, means my all the childhood memories, everything. So it was like when I was 5 years old or like that, I was wearing like sleeves, because in Kerala, I am from remote village of Kerala, so I could see only that. Then I told her, like, then she was asking me, hum dur tak ab the hi nahi. So what is there to, like, told her, like, because recently only all these memories, everything I started May 7th onwards last year, and this May 4th I have published my book. So the child was saying, hum kabhi dur the hi nahi, because all the memories, everything, that one only in that. So I don't know, then I told, means what do you want to say to me, like that? No, like in Kerala, you know, coconut trees, no, that green color coconut tree stem we will remove. Then with that, no, we used to, if you beat somebody, then you will have like so much of pain. So we were removing that and playing that one like that. And then later on, I just asked, means what that you want me to do like that. Then actually, I was a happy child because my childhood, everything was okay. I was a positive child. Parents, I have got one elder brother and one younger brother, and I am the middle one. I was having a sister. She she died at the age of 3 years. So my mother, no, she was giving some because she was feeling like if she started loving me, then I also may not be able to survive or something. I don't know. So she never used to show the love like that. My Masi, she was always with me. So, but I know, I understand all this. I don't have any problem with my mother. Everything is okay. So I asked, what do you want from me? Then she was saying, like my father-in-law, they all were nice. Like everybody used to say, no, mother-in-law bad. I never did any work in my mother-in-law's house, not even a single glass of water. Now she's no more, my father-in-law is no more, but a blessed life, you can say. No, even with my daughter-in-laws and I don't have any problem. So she was saying, your father-in-law has told you, means give to everyone whatever you could give, and means be happy, and happiness bando, like that. So that's what only I told. That's my purpose, I feel. So इसमें कुछ है, मैंने कुछ देखा या everything was my imagination or visualization? That's what I am having the doubt. But I feel, I know it's not like that. What do you say, ma'am? Because you are more experienced. No, that's perfectly fine. No doubts. Whatever your inner child has told you, like, it's perfect. You were never far away. आप लोग तो हमेशा ही connected हैं. वो जो memories आती हैं, that's because वो आपको अंदर से, वो हमें memories नहीं आती, वो हमें दिलाता है memories की I'm there, please come to me, sometimes I'm there. तो वो हमेशा connected है. और आपसे उसने जो भी बोला है, that's perfectly fine, and believe that blindly, because those are the word of divine today. So those are the life-changing. Today is going to be the life-changing day for all of us, because we have done something which we were supposed to do right from the beginning, but since we never knew it,
we didn't do it, है ना? तो it's a wonderful thing we have done today. तो जो भी उसने बोला है आप just उसको follow कीजिए, no, without any doubts, okay? Thank you. Thank you. Perfect. Be blessed. Thank you. Poonam ji, the session was extremely beautiful. Amazing session. Thank you. एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि जब हम लोग अपने इनर चाइल्ड से बात कर रहे हैं, तो how do we know that we are talking to our inner child, inner being, or our mind is speaking to us? माइंड को तो हम डीप ब्रीदिंग से पहले खाली कर देते हैं. दैट्स द रीजन कि हम पहले डीप ब्रीदिंग पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? बिकॉज व्हेन आवर माइंड इज क्लियर ऑफ थॉट्स, तभी तो हम आगे जाएंगे. और इसमें माइंड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यू फील ना, आपको कभी रोना आया होगा उसमें, कभी उस पे प्यार आया होगा. माइंड जो है वो नफरत सिखाएगा आपको, वो आपको अच्छी चीज से दूर लेके जाएगा. तो ये दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि आपका माइंड है या फिर आपका हार्ट है. इफ यू आर फीलिंग लव एंड कंपैशन एंड इफ यू आर फीलिंग ऑल दोस फीलिंग्स डीप फॉर दैट इनर चाइल्ड, तो मतलब कि ये आप है, आपकी इनर बीइंग है. और अगर आपको अजीब सा गंदी गंदी सी फीलिंग्स आ रही है कि नहीं नहीं, तो वो आपका माइंड इज प्लेइंग विद यू. सो आई थिंक इसमें माइंड का तो किसी के पास हाथ था ही नहीं. इट वाज ऑल लाइक फ्रॉम यू नो दिस प्लेस. Yeah, thanks. Be blessed. Thank you. Yes, very quickly, if anybody else want to share anything. I think nobody wants to share anything. So I think we are done for today. And I would like to congratulate each and every one of you for doing this wonderful session for your own self. And your inner child will be blessing you, and your soul will be thanking you a lot, because all our life we live for this body. We think that we are this body and we forget who we truly are. So आज we have done something for the true self. So your soul is going to thank you for this, and your inner child is going to bless you for this. So thank you everybody for this session, and thank you for all those who have donated, and be blessed abundantly. And I bless you all, and let us all have our own happiness and beautiful life. Be blessed, everyone. Thank you so much. Namaste. Thank you. थैंक यू पूनम, थैंक यू सो Thank मच. you so किसी ने much. चैट पे Thank you, लिखा है Alika. कि वन टाइम टीनेजर वाला सेशन लीजिए, यानी टीनेजर को हील करना. Definitely, हम प्लान कर लेंगे किसी दिन. I'll talk to you, Alifia, on this. जिस दिन भी टाइम होगा, we can keep one session. ठीक है? और maybe अगर tomorrow I'll see Sunday है, अगर मेरी कोई commitments नहीं है, तो फिर हम कल भी रख सकते हैं. तो we'll plan. I'll talk to you and we'll plan something, right? Wow, that's great. अगर कल ही रखेंगे तो बहुत Yes, बहुत ही अच्छा रहेगा. Yeah. चलो अभी फिर we conclude this session today. Thank you everyone. Yeah, thank you. Thank Be you. blessed. Thank you Be so blessed. much. It was amazing session. Amazing. पूनम जी, to the right. अलीफिया, आपका घर बहुत खूबसूरत है, व्हाइट एंड ग्रीन. वो एक्चुअली नहीं, वो तो I have done those paintings, like me and my children have done those paintings, you know. That is round Very is nice. chakra painting and all those paintings. Like when I connect with my inner child, I do sit, because like this was a gift I unlocked after my Kundalini awakening, because usse pehle I was a pathetic painter. I could never, you know, draw and all that stuff. Yeah, when initial stages, when I was in primary school, I was good. But as the time passed by, I became pathetic in drawing and painting, you know. And when after my Kundalini awakening, I think I unlocked so many things, and this was one of them. I started like out of nowhere, like I got this paints khareed ke lao. I bought the paints, I bought the complete painting board and sheets, and then I started painting, and I was like,
Oh my God, I could paint so beautiful. और मुझे सारी जिंदगी पता ही नहीं था. So I and my 2 of my kids, हम तीनों एक साथ बैठ के पेंटिंग करते हैं. फिर जो उसमें बहुत अच्छे पेंटिंग्स होते हैं, then we do something with our walls like that. So these are very generic. घर की vibes भी are very generic क्योंकि हम खुद ही हाथ से सब कुछ करते हैं, me and my kids. So that's how that also helps us healing our inner child, you know. So with this tip, we conclude now. Thank you so much, and be blessed, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Love you Have a all. nice, Thank you. Love you all. have a So nice Thank you. day. Thank you. Lots of love. Have a nice day to all. Yeah. Thank you. Okay. Have a wonderful day, everyone. Thank you. Have a Bye. wonderful day. I'll now end the session. Yeah, please. Okay, bye.